नोट कर लिया था आप लोगों ने? नाउ टुडे I'm discussing about the voltage regulation of the synchronous machine. ठीक है। हम जो है टुडे आई एम अबाउट टू टॉकिंग अबाउट द voltage regulation of the synchronous machine. If I'm talking about synchronous machine, the synchronous machine is a three-phase machine. अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो आपको जो है क्लियर होना चाहिए कि हम टॉकिंग अबाउट थ्री फेज आर्मेचर थ्री फेज मशीन। ठीक है ना? लेकिन अगर इंडक्शन मशीन की बात करें तो इंडक्शन मशीन में जो है आई कैन टॉक अबाउट थ्री फेज इंडक्शन मशीन एंड सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, may be three phase transformer. And if I'm talking about DC machine, DC machine is operated only DC supply. Positive and negative terminal are there. So this point should be clear for all type of the machine. And now I'm discussing about the what is mean by voltage regulation. Voltage regulation already I done in a single phase transformer and three phase transformer. And here I'm discussing about the voltage regulation of the synchronous machine. If I'm talking about synchronous machine, I will take two cases. First case taken for cylindrical synchronous machine, and second case is taken for silent pole synchronous machine. All this technical term is clear everyone. ठीक है। तो now I'm talking about the definition of the voltage regulation of synchronous machine, and I will take cylindrical synchronous machine and salient type synchronous machine, and after that I will discuss the method to determine voltage regulation. And there are three methods we are about. हेलो। सर स्क्रीन शेयर की हुई है क्या आपने? हाँ, स्क्रीन हाँ शेयर हाँ किया हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर मेरे में तो रहा है। हेलो। सर मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है सर दिख रहा है सर सर मेरे में। शैली आपको दिख रहा है? हाँ सर मुझे Only दिख रहा है। content, only content will be seen. हाँ ठीक है, कंटेंट ही मैं अभी ओपन किया हुआ हूँ। ठीक है। सर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। कंटेंट कंटेंट ही वो किसको नेटवर्क कुछ स्लो नहीं दिख रहा है? साहिल तुम्हारा नेटवर्क स्लो होगा, फिर से कनेक्ट हो जाओ डिस्कनेक्ट होके। ठीक है ठीक। ठीक है। आई विल मूव एंड the method are following are the method to determine voltage regulation. First is synchronous impedance method, second is the MMF method, and third is the zero power factor method. And after that I will move to first definition. What is voltage regulation? uh, Voltage regulation I discussed in single phase transformer and three phase induction motor, and now I'm talking about the voltage regulation of the synchronous machine. The voltage regulation is defined as the no load voltage to full load divided by the full load into 100. 100 is multiply for the finding percentage voltage regulation percentage. अगर voltage regulation percentage अगर find out करना है तो we must multiply by the 100. ठीक है ना? If I'm talking about the voltage regulation is defined as the no load to full load. It is the defined as the ratio of no load to full load. ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है? The convenient way to compare the voltage behavior of the two generator is by their voltage regulation.
अगर सपोज इफ वी आर comparing behavior of two alternator, the voltage regulation is the important parameter for the comparison point of view. And with the help of voltage regulation, we are comparing two alternator which are about to connect in parallel operation. The voltage regulation of the synchronous generator at a given load power factor at a rated speed is defined as. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हम define the voltage regulation. If voltage regulation is defined as the ratio of no load to full load at a given load, given power factor and rated speed, these are the conditions for the finding voltage regulation. Load is given, power factor and rated power factor and rated speed. ठीक है, रेटेड स्पीड और रेटेड पावर फैक्टर पे जो है हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है एक तो नो लोड वोल्टेज होगा, दूसरा जो है फुल लोड वोल्टेज होगा। नो लोड वोल्टेज का मतलब कि वी आर रिमूविंग द लोड टू द टर्मिनल ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। फुल लोड दैट मीन्स कि वी आर कनेक्टेड ऑल द लोड टू द टर्मिनल ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर। देन voltage regulation is defined as the ratio of no load voltage to full load voltage divided by full load voltage into 100 at a rated power factor and rated speed of the alternator। ठीक है, अब इसके बाद where VFL is the full load terminal voltage and ENL is equal to the EF is no load terminal voltage, internal voltage at a rated speed. And if I am talking about no load voltage, so no load voltage is finding at a rated speed. And if I am talking about full load, the full load is finding at a rated speed. Both are terminal voltage, no load and full load, taken at a rated speed of the synchronous generator. When the load is removed without changing the field current, the lagging power factor, the voltage is fairly positive. For a unity power factor is small positive. For a leading PF या वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। अब यहाँ पे जो है ध्यान देना ये है कि अगर हमारा लैगिंग पीएफ पे अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में जो है वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पॉजिटिव होगा। अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे हम अगर फाइंड करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन तो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू पे हम वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम लीडिंग पीएफ पे अगर वोल्टेज रेगुलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है हमारा नेगेटिव होता है। यू मस्ट क्लियर इन योर माइंड। Voltage regulation by the synchronous impedance method. First of all, I will discuss about the first method. Earlier, I talked about there are three types which is widely used for the finding the voltage regulation of the alternators. So now I'm taking first method for finding voltage regulation. And to find the voltage regulation, following data are required: resistance of the armature and the stator winding per phase. First of all, we have to perform, we have to find resistance of the armature winding and resistance of the armature winding और stator winding per phase के according जो है हमको resistance find out करना है stator winding का। stator winding as we know and I discussed about the construction of the synchronous generator. And armature is placed at stator side and armature's resistance should be there. First of all, we have to find the resistance of the armature. And second is we have to perform open circuit characteristics. Then we have to perform short circuit
characteristics, open circuit characteristics and short circuit characteristics already I did in previous lecture, and now again I revised open circuit test and short circuit test. Resistance of the armature. The resistance of the armature or the stator winding per phase can be determined by using voltmeter ammeter method by using the Wheatstone bridge. This is the type of the AC bridges which is widely used for the finding the resistance. ठीक है. The effective stator winding resistance is always greater than DC value due to the skin effect. If I'm talking about skin effect, what is mean by skin effect? Anyone know about that? Because it always used in power system. Hello? What is mean by skin effect? Anyone know about skin effect? Raman, are you getting my audio? Hello? विवेक? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है स्किन इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय स्किन इफेक्ट? हेलो? सर जब किसी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट हाँ। देते हैं तो उसके जो करंट है वो उस पे सरफेस चार्ज होते हैं, सरफेस पे आ जाता है, उसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। हाँ, क्या होता है? फिर से बताना जरा। फिर किसी कंडक्टर में करंट देने पे जो उसकी सरफेस पे चार्ज आ जाता है कंडक्टर के बाहरी तरफ, दैट इज कॉल्ड स्किन ठीक इफेक्ट। है। किसी भी एक मिनट, किसी भी कंडक्टर का मतलब कि अगर डीसी सप्लाई हम किसी कंडक्टर में अप्लाई करते हैं तो उसके चार्ज सरफेस पे आ जाते हैं। सुन रहे हो? यस सर। तो क्या डीसी अगर अप्लाई करेंगे तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा? सर डीसी नहीं, एसी। अगर डीसी अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? हेलो? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो? फोन कर रहे थे अभी कुछ देर में। लेक्चर चल रहा है। हेलो? आवाज सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? देखिए, स्किन इफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज इफ वी हैव अ कंडक्टर और कंडक्टर इज एक्साइटेड या कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई दैट मीन्स कि supply having its own frequency at a power frequency. If I'm talking about power frequency should be 50 hertz in India and 60 hertz in Europe and US. And now the skin effect is occurring in a if supply having its particular frequency. ठीक है? That means कि maximum current will flowing through the surface of the conductor and minimum current will flowing through the center of the conductor. Causes cross section area are decreases, and due to the decrement of the cross section area the effective resistance will be increases. ठीक है ना? अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है तो उस केस में रेजिस्टेंस जो हमारा बढ़ेगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्किन इफेक्ट. यू मस्ट रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑलवेज, and it may be asked during your pedicle exams. This term will be come in our power system analysis. Your power system analysis, then you must clear here. The maximum current will flowing through the surface of the conductor and minimum current flowing through the center of the conductor. This is the effective, matlab this is the skin effect. What is the effect of the skin effect?
increases the effective resistance of the conductor. That means कि cross section area decreases. If any conductor decreases its own cross section area, then resistance should be increased. ठीक है, this is the drawback of the skin effect. Due to the increment of the current, the copper loss should be increased. This is the problem of our AC system. समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद में नाउ AC रेजिस्टेंस में बी टेकन अप्रोक्सीमेटली 1.2 या 1.3 टाइम द DC रेजिस्टेंस मेजर्ड। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने DC रेजिस्टेंस को मेजर किया हुआ है तो उसका 1.2 या 1.3 टाइम्स हमको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्यों? जहां पे हम AC अप्लाई करेंगे उसमें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगा, लेकिन अगर DC की बात करें तो DC में जो है फ्रिक्वेंसी हमारा 0 होता है, तो वहां पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है। करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करके फ्लो होता है। जब पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को कवर करके फ्लो होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस बना रहेगा। तो इसलिए जब DC रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो है 1.2 या 1.3 से मल्टीप्लाई करके AC रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? रमन? यस हेलो? सर, यस सर। अब देखो, सबसे पहले हम टॉकिंग अबाउट ओपन सर्किट टेस्ट। पिछले वाला जब लेक्चर ले रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग आप लोग प्रेजेंट नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है कैसे परफॉर्म करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम टॉकिंग अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। द जनरेटर इज टर्न एट ए रेटेड स्पीड। पहला कंडीशन ये है कि जनरेटर को रेटेड स्पीड पे हमको ऑपरेट करना होगा। रेटेड स्पीड पे जो है हम प्राइम मूवर के थ्रू करेंगे। ठीक है। सेकेंड जो है, टर्मिनल आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल लोड एंड द फील्ड करंट इज सेट टू 0। जनरेटर के टर्मिनल पे जो है लोड को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एक्साइटेशन को जो है 0 पे सेट करते हैं। सेकेंड जो है कंडीशन हमारा ये होता है। थर्ड में क्या करते हैं, द फील्ड करंट इज gradually increase in step and the terminal voltage is measured at each step along the way. That means we are increasing the field current and then we are measuring the terminal voltage. ठीक है ना? Suppose the field current is increased step wise and every step we are measure the terminal voltage of the alternators. ठीक है ना? जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप पे जो है टर्मिनल वोल्टेज की रीडिंग को जो है हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, और साथ में जो है फील्ड करंट को भी रीड करेंगे और जो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज को भी रीड करेंगे। ठीक है। लास्ट इज इट इज दस पॉसिबल टू ऑब्टेन एन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जनरेटर EF और VT वर्सेस IF फ्रॉम। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है क्या है, ये जो है दिस इज द फील्ड करंट। ठीक है ना, ये IF है। यहाँ पे हमने DC वोल्टेज जो है अप्लाई किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे जो है इसको वैरी करके रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके जो है IF को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो है अगर रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है अगर मैक्सिमम है तो IF का वैल्यू जो है मिनिमम होगा। जैसे रेजिस्टेंस हम डिक्रीज करते जाएंगे तो हमारा IF का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया कि सबसे पहले जो है हम फील्ड करंट को 0 सेट करेंगे, तो सेट करने के लिए जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इस पे इंसर्ट कर देंगे जिससे इसके क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद में ग्रेजुअली जो है रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे तो यहाँ IF का वैल्यू बढ़ेगा। जब IF का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है 3 फेज हमने किया हुआ है, RY और B किया हुआ है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ये R है और ये Y है और ये B है, तो R और Y के बीच में हमने जो वोल्टमीटर लगा दिया जो कि टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे IF के वैल्यू को जैसे बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है सारे लोगों को? हेलो?
यस सर, हाँ यस सर। सुनाई दे रही है। यहाँ तक क्लियर है ना सारे स्टेप? हेलो, यस सर। ठीक है। अब सेकंड जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है दो फेज को जो हम शॉर्ट सर्किट करते हैं और बाकी का अरेंजमेंट सेम होता है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा जो है फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे डीसी सप्लाई हमने अप्लाई किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है हमको, एडजस्ट द फील्ड करेंट टू जीरो एंड शॉर्ट सर्किट। टर्मिनल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और फील्ड करेंट को जो है हमने जीरो सेट कर दिया। जीरो सेट करने के बाद, करने का मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस को हमने इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, हेलो, यस सर। मैक्सिमम रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर दिया हमने। मैक्सिमम रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो फील्ड करंट है वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेजुअली जो है रेजिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे। तो जैसे डिक्रीज करेंगे तो आईएफ का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट आईएस का वैल्यू बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों को, अब ये जो है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट है और ये जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। अब यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज VT को रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने, फील्ड करंट IF को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की। तो ओपन सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ तक होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट के बाद में जो है ये मैग्नेटिक सेचुरेशन की वजह से जो है हमारा ग्राफ जो है IF यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये जो है कर्व फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कोर होता है वो हमारा सेचुरेटेड कोर होता है। जब सेचुरेशन की वजह से जो है ये हमारा नॉन लीनियर ग्राफ जो है यहाँ से जनरेट होता है, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक। अब सिमिलरली जो है अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट जो है हम जो है अब यहाँ पे बी रेटेड है और VA ये हो गया हमारा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो है वाई एक्सिस के अलोंग जो है हमने शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे IF है। तो जैसे जैसे हम IF को बढ़ा रहे हैं तो देखिए हमारा जो है ग्राफ लिनियरली जो है इंक्रीज हो रहा है, जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो है हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये जो है हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें हमको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले जो है हम IF के उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिस पे जो है रेटेड, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट की बात करेंगे। तो हम IF के उस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे जिस पे हमारा रेटेड वोल्टेज जनरेट होगा। तो रेटेड वोल्टेज जो हमारा कहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे IFB पे जो है हमारा रेटेड वोल्टेज जो है हमारा जनरेट हो रहा है। किस में हो रहा है, ओपन सर्किट टेस्ट में हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा जो है रेटेड करंट जो है किस वैल्यू पे जनरेट हो रहा है। अब रेटेड करंट जो है हमारा सीधे सीधे इस पे जनरेट हो रहा है ISC। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेटेड करंट जो है जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे हमने फाइंड आउट किया। अब जैसे हमको जो है इम्पीडेंस फाइंड आउट करना अनसेचुरेटेड, तो ये RA² प्लस यस स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको जो है फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, या तो VA डिवाइड बाई ISCA। देखिए ये जो हमारा ISCA है वैल्यू, ठीक है, ये IFA पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये जो है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज हमने जो है को जो है इसे डिवाइड कर दिया, तो जेड अनसेचुरेटेड वैल्यू का जेड अनसेचुरेटेड आ गया हमारा। सेकेंड जो है एक्स अनसेचुरेटेड अगर फाइंड आउट करना है तो जेड स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर हमने कर दिया है यहाँ पे। ठीक है,
तो आर ए स्क्वायर, आर ए इज नोन फ्रॉम द डीसी टेस्ट, डीसी टेस्ट से जो है हम आर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्स अनसेचुरेटेड अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे सीधे सीधे हम ई एफ डिवाइड बाई आई एस सी ए से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आई एस सी ए का मतलब ये हमारा जो है ये करंट है, ठीक है ना। ये जो है रेटेड फील्ड करंट पे हमारा जो है रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से जो है या वी टी ओपन सर्किट डिवाइड बाई आई एस सी ए से जो है आई एस सी ए से जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फार्मूला फटाफट लिखना है तो लिख लीजिए, आप लोग लिखेंगे आप लोग? हेलो? हाँ हाँ सर सर, लिख एक मिनट रहे एक हैं। मिनट। इम्पोर्टेंट है बेटा, फटाफट बना लो। ऊपर का स्लाइड भी दिखा दूं क्या? हो हो गया? हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो है क्या बोलते हैं कि हमको जो है इसका सलूशन चाहिए, ले सकते हो? हेलो? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हाँ सर ले लिया। ठीक है, कल 2 दिन का टाइम मैं देता हूँ, इसका हमको सलूशन चाहिए। ठीक है, आप लोग अपलोड कर दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। ठीक है, आप जो है आई थिंक अब हमको 2 लेक्चर लेना है, एक मशीन का लेना है, दूसरा जो है
सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का। तो 15 मिनट के बाद में मैं जो है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद में जो है मैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का क्लास शुरू करने वाला हूँ। तो आज जो है मैं इतना ही वाइंड अप करूँगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी 2 लेक्चर अगर आप लोगों का होगा तो एक लेक्चर जो है मैं 7 से 8 लूँगा और दूसरा लेक्चर जो है 8 से 9 लूँगा। ठीक है, टोटल जो है 50 मिनट्स के लेक्चर होते हैं। तो जो हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, जो 7 का टाइमिंग है तो 7:10 से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे मैंने 7 से नहीं स्टार्ट किया तो किसी को इस तरह से नहीं सोचना है कि नहीं सर आज क्लास ही नहीं लेंगे। 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद भी क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 50 मिनट ही मुझे क्लास लेना है। ठीक है, दूसरा जो है 8 8 बजे से जो क्लासेज स्टार्ट है तो बीच में कम से कम एटलीस्ट 15 मिनट का मुझे गैप चाहिए। तो 15 मिनट के बाद जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब जो है अभी तक मैंने जो बताया हुआ है, अब इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन बाय द एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड के थ्रू जो है कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक जो है 2 लेक्चर लगेंगे वोल्टेज रेगुलेशन को कंप्लीट करने के लिए। यही थोड़ा टफ टॉपिक था, इसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? एक बार मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ और 15 मिनट के बाद जो है फिर से 15 मिनट जो है आप लोग। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ये तो 15 मिनट के हाँ बाद में फिर सर, से मैं आ रहा सुनाई हूँ। दे। ठीक है, सेंसर की क्लास के लिए थैंक यू वेरी सर मच। 15 मिनट के बाद हेलो, सर नेक्स्ट वाली क्लास मैं नहीं कर पाऊंगी सर। क्यों? सर मैं वो बिजी हो जाऊंगी इस कोई वजह बात, से। 2 लेक्चर तो है ना बेटा आपका, 7 से 8 और 8 से 9। हाँ सर, पर नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम मतलब बिजी हो जाएंगे इस वजह से। त्योहार है शायद। हाँ सर, आज वो है ना करवा चौथ, तो फिर सर कुछ काम वाम करवाना है। क्या कर रहे हो? अच्छा सर ठीक, आज कोई करवा बात नहीं, चौथ है तो थैंक यू वेरी थोड़ा मच। बहुत ठीक काम है, वाम करवाना है इसलिए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर हम फाइंड आउट हाँ सर। करते हैं आज एक ही लेक्चर में। ठीक है।